जय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। सो वेलकम टू आवर लेवल और चैलेंज फॉर ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर ईओ एओ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए वी आर रनिंग आवर लेवल लॉ सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग डेली 5 to 10 क्वेश्चंस दोस्तों। 5 to 10 questions based on labor laws, industrial relations, social security, little bit computer, little bit accounting also, right? I hope this initiative is helping you in your preparation to revise the content based on these topics, right? So please, if you feel that these initiatives are helpful, please like and subscribe this channel, right? And also we have test series ebook on these topics. If you are interested, you can join. Still 20 days बचे दोस्तों, just 20 days. You have to speed up your preparation. So these 20 days are very important for this examination. If you have not covered these topics, especially labor laws, industrial relations, social security, accounting, computers, ठीक है, still there is a time you can cover because these topics are very crisp, and if you read these topics, there is a high benefit of getting good marks. Like minimum there will be 15 to 20 questions, and you can score in these topics very well if you read just few hours of the study, right friends? So just कुछ घंटे पढ़ के या कुछ 100 to 150 pages PDF पढ़ के you can score very good marks. At least there is chances that you can score if things are simple, right? तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज ज्वाइन आवर इनिशिएटिव टेस्ट सीरीज एंड ई बुक ऑल्सो। द लिंक्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सबके लिंक दिए हुए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव। एज यू नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वी हैव टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज डिस्कशन, ठीक है, टेस्ट 3 टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी विल डिस्कस द टेस्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, ठीक है दोस्तों, चलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कहता है कि मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए इज गिवन, कॉलम बी इज गिवन, एंड नाउ कॉलम ए टर्म्स आर गिवन लाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग, लाइसे फेरे, एलिनेशन, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, these are terms given in the then column B, respective meanings are given like free market, detachment from the work, a process by which the terms of employment and condition of service are determined. D, contract employment for fixed duration but on par with permanent employees, right? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द टर्मिनोलॉजी इन द लेबर लेजिस्लेशंस. It means that a process by which the terms of employment and conditions of service are determined by the trade unions mostly. Collective unions की, like in PSUs or factories, there will be many unions, trade unions. They will bargain on behalf of workers, ठीक है, with the management for the employment conditions and other related issues. ठीक है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसको उस प्रोसेस को नाम दिया गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो इसका क्या हो जाएगा, एक सी, राइट. Now, second is laissez-faire. As you know, this term is very popular. Adam Smith, the father of modern economy, who popularized this word, who talks about the free market. There should be no any control of the government in the market forces. ठीक है, there is an invisible force that is the demand and supply that will control the market, right? According to this laissez-faire, free market we can say in this question. एलिनेशन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एक्चुअली कार्ल मार्क्स गेव दिस कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन. ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि एलिनेशन इन फैक्ट्रीज व्हाट हैपेंस, वर्कर्स गेट एलिनेटेड ड्यू टू द रिपीटेटिव वर्क ऑफ factory and also lack of motivation in big picture. They could not see the big picture, that's why they get alienated from the work, means detached from the work. इसका मतलब ये है कि दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट फ्रॉम द वर्क बिकॉज इट इज सो बोरिंग एंड रिपीटेटिव एंड दे डोंट हैव मच बिगर मोटिवेशन. दैट्स व्हाई ही कॉइन्ड द टर्म एलिनेशन. तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क. बी, राइट. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, आई नो there are many nowadays companies and factories, even government sectors, they are going for fixed term employment, means they will
hire employees for fixed term like 3 years or 5 years on par with the government regular employees. Means they will be getting regular salary, means equivalent salary to regular employees, but for the only fixed duration of time. After that they will be fired, right? So that known as fixed term employment. तो इसका हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. दिस टर्म्स, दिस डेफिनेशन यू नीड टू नो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Who is a second question? Who is adolescent and where the fact is in 1948? Very simple and important question still. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है. Who has completed 15 years service? Who has less than 18 years? Who has completed 14 and less than 18? Who has completed 16 years service less than 18 years? तो आपको दोस्तों क्या लगता है इसका? Already we have discussed many times. तो इसका आंसर दोस्तों A. Who has completed 15 years and less than 18 years? That person is known as adolescent. Adolescent. एंड लेस देन जो 18 ईयर्स है, लेस देन 15 ईयर्स है, उसको क्या चाइल्ड में डाला जाता है एज से. एंड ग्रेटर देन 18 है तो उसको एडल्ट, ठीक है, उसको क्या एडल्ट, राइट. तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी, यू शुड बी वेरी क्लियर, राइट. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फास्ट. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन के लिए क्या रिक्वायर्ड है दोस्तों, कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए? 2, 3, 7, 10. तो ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों? सी. C is the correct answer. There should be 7 members minimum required for registration of a trade union as per the Trade Unions Act 1926. Very important act. All those acts you should study for this, right? चलिए. Which of the following duties are considered as a trade dispute? Trade dispute कौन से करने होंगे under the provision of Trade Unions Act 1926? ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों. Any dispute of any person connected with employment, non-employment, conditions of labor. Select the correct answer with the code given below. ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या लगता है दोस्तों इसका? डी. ऑल थ्री आर, सॉरी, 1 मिनट, सॉरी डी नहीं, इसका सी, ठीक है. तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी. यस, ऑल थ्री, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और कंडीशन ऑफ लेबर भी हो सकता है, राइट. तो इसका आंसर इज सी. What is the maximum amount of, now fifth question दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन. What is the maximum amount of gratuity payable to the, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1972 जो ग्रेचुटी ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है. इसके हिसाब से पूछ रहा है कि मैक्सिमम अधिकतम कितनी ग्रेचुटी दी जा सकती है. तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. तो इसका दोस्तों आंसर क्या है? डी. एज पर द करेंट लेजिस्लेशन currently the limit is 20 lakhs, right? चलिए. What is the maximum number of hours in a week that adults are allowed to work? Very simple question. Already we have discussed many times. इसका दोस्तों क्या 48 hours वीकली एंड डेली 9 hours, राइट. तो यहाँ पे 2 क्लॉजेज है. 9 hours डेली होना चाहिए, 8 hours नहीं दोस्तों. मैक्सिमम 9 hours एंड वीकली 48 hours. चलो 7th क्वेश्चन देखिए. What is the maximum period in which the appropriate government shall revise the minimum rates of wages under the Payment of Wages Act 1948? इसके हिसाब से पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम पीरियड में इसको रिवाइज करना है, मैंडेटरी है. तो 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. व्हाट इज द आंसर दोस्तों? इसका है यहाँ पे 5 years. 5 years में अधिकतम मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन. आफ्टर दैट गवर्नमेंट मस्ट हैज टू रिवाइज दिस मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस एक्ट. चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following benefits can be combined under the Employee State Insurance Act, ESI Act 1948? This act is also very important, ठीक है. All those provisions you should know. इसके अंदर क्या क्या provisions है? Medical business है, medical benefits है, sickness benefits है, maternity benefit also they are giving, ठीक है. Disablement है in case of some accident or something, right? पूछ रहा है कि which of the benefits can be combined under this act, ठीक है. इसका आंसर दोस्तों क्या है? डी हो जाता है. तो बता देता हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट यू कैन कंबाइन, बट सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी यू कैन नॉट कंबाइन, ठीक है. तो ये रॉन्ग है. इसमें ये भी डिसेबलमेंट जो बेनिफिट है वो भी नहीं कर सकते हो आप, डिसेबलमेंट वाला ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी. चलो 9th क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग चेंज? इट इज आस्किंग चेंज मैनेजमेंट में एक थिंकर थे, क्या नाम उनका? कर्ट लेविन. कि इसके हिसाब से जो चेंज
का मैकेनिज्म है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो कंपोजिंग, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रिफ्रेजिंग, राइट। तो एज पर दिस थ्योरी दोस्तों, दिस कंपोजिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द चेंज मैकेनिज्म, अनफ्रीजिंग इज पार्ट ऑफ दैट, चेंजिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, रिफ्रेजिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट चेंज मैनेजमेंट, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट। इज आस्किंग जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के है उसके कौन सा करेक्ट नहीं है दोस्तों, इट इज आस्किंग। यहाँ पे देख लीजिए, जॉब एनालिसिस, इसका आंसर दोस्तों क्या बता देता हूँ मैं, सी। अब पढ़ लीजिएगा इसको। जॉब इवेल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस टू डिटरमाइन द जॉब समरी। जॉब है, ये रॉन्ग है दोस्तों, तो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो इसका सी हो जाएगा। चलो, Who among the following developed the multiple management technique of management development program? Who has given this management development program? Option: Charles P. McCormick, Charles Babbage, Bill Thompson, Mike Thompson, Gary Dessler। तो इसका आंसर दोस्तों क्या पे है, अब ए है, ठीक है, चार्ल्स पी मैककॉर्मिक, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर्स, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए सी है। लाइन मैनेजर का उनका जॉब क्या है, असिस्ट जॉब एनालिसिस बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन, राइट फ्रेंड। चलो 13 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉस एक्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स दिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल harassment एक्ट 2013 फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट कंप्लेंट टू इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मस्ट बी मेड विद इन हाउ मच टाइम। इट इज आस्किंग कि जो अगर किसी वीमेन के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है तो उस लेडी को विद इन हाउ मच टाइम शी हैज टू फाइल अ कंप्लेंट टू इंटरनल कंप्लेंट कमिटी विच इज पार्ट ऑफ पॉस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, राइट। तो ऑप्शन क्या, 6 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स शी हैज टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMJBY launched in which year? Already we discussed many times, 2015, very important scheme. Consider the following statement about Atal Pension Scheme. Already many times we have discussed, this scheme is also बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू प्रोवाइड अ पेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एज बिटवीन 18 से 50 डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर, टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों पहले तो यहाँ पे देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक आप फॉलो कीजिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कब तक है, 40 ईयर तक है। 18 से कोई भी, ज़्यादातर पेंशन स्कीम क्या है जो आपको एक चीज़ ट्रिक बताते हैं, मोस्ट ऑफ द, मैं आई एम नॉट सेइंग कि यूनिवर्सली फॉर ऑल इट इज़ ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द पेंशन स्कीम एज इज maximum age is up to 40 years only, means up to 40 years people they can join only pension scheme जहाँ जहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे PM किसान निधि योजना, ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना, उसमें भी सब में क्या है, 40 साल तक ही एज है। यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4। 1 to 4 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, D is the answer, right। The provision of equal pay for equal work is mentioned in under Constitution under which article? Already we have discussed many times दोस्तों। इसका आंसर क्या है, A, Article 39 of the Constitution। In directive state of principal policy, it is mentioned that there should be equal pay for equal work, right? I hope things are clear and you are understanding what I am trying to say, ठीक है। If any doubt is there, please let me know in the comment section so that I can improve in the future in coming videos, right। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding constitutional amendment? दोस्तों यहाँ से क्या है, हमने तो पॉलिटी के पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, क्या है, थोड़ा सा यहाँ क्या पॉलिटी का टच करने की कोशिश किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट इट विल बी ऑल्सो रिवाइज, ठीक। तो यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन क्या है टेस्ट में, पॉलिटी के भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, राइट। उसी हिसाब से 9 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड विद द पॉलिटी, ठीक है। Regarding constitutional amendment bill, which of the following are correct? Prior permission of president is required before introducing constitutional amendment bill, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि president must give his assent to bill if duly passed by the both houses। So what do you think दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? As you have studied much, very much polity, you should answer these questions, ठीक है। आपको बताना कमेंट सेक्शन में, प्लीज let me know what is the answer for this question before seeing the solution, ठीक है। तो 17 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 का देखिए आंसर क्या है, only 2। 17 का आंसर है दोस्तों only 2, क्योंकि प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये क्या है, रॉन्ग है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो बी
द इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन गवर्नर कैन बी अल्टर्ड बाई, जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसके सैलरी, भत्ता, विशेषाधिकार को कैसे हटाया जा सकता है, उसको कैसे बदला जा सकता है, नॉट हटाया जा सकता है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन लाना है तो कैसे लाया जा सकता है, इट इज आस्किंग व्हाट इज द प्रोसीजर। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, राइट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, a constitutional measure will passed by parliament by half of the state legislation by a normal legislative process that does not require constitutional amendment। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ ए, a constitutional amendment bill passed by simple majority only। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि वन हाफ, राइट। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 होता है, ये आपको बेसिक चीजें पता होंगे आई थिंक, ठीक है। So it requires only simple majority, means half of the only 50%, more than 50% is enough for this। Okay, चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following is our federal feature of our constitution? संघीय ढांचा का कौन सा फीचर है, कौन सा प्रोविजन है? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोस्तों आपको क्या लगता है उसको, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल आर वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए मजबूर कर देंगे, इसलिए दीज टॉपिक्स वंस यू गो एंड रिवाइज लक्ष्मीकांत, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद द फुल क्लैरिटी, प्लीज इट्स माई काइंड एडवाइस, प्लीज गो एंड रिवाइज योर लक्ष्मीकांत, especially these topics which are mentioned which are asked in the examination, which will give you clarity in the for future, so that you will not make mistake in the final examination, right। तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, 1 2 3 ऑल 3 आर पार्ट ऑफ व्हाट, फेडरल फीचर, राइट। चलो 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन? सेंट्रल जो राज्य केंद्र का रिश्ता है उनके बारे में कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए 1 क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट द लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद द सेंटर। तो इसका दोस्तों क्या है, ये लेजिस्लेटिव पावर दोस्तों दोनों के साथ है, क्योंकि इसीलिए उसका कॉन्करेंट लिस्ट है कि जो कानून बनाने का अधिकार है दैट इज विद द बोथ स्टेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या है, तो वो यही पहला वाला करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जो उसको इम्प्लीमेंट करने की होती है, वो किसके पास होती है दोस्तों, स्टेट्स के पास होती है, बिकॉज दे हैव टू इम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो, who has propounded the theory that industrial conflict is a part of broader social conflict between classes and used to explain fundamental historic process of change and development in the human society? It is asking on statement very important कि ये किसने दिया था दोस्तों? Who has propounded the theory that industrial conflict जो होता है, जो conflict मतलब आपस में जो कुछ मतभेद होते हैं, is a broader part of the social conflict, सामाजिक जो conflict है उसका एक part है। Who has given this theory? It is asking, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, फ्रैंक टेनेनबम, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जीडीएस कोले। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, कार्ल मार्क्स ने ये बोला था, जिन्होंने क्या है दिया था थ्योरी, ठीक है। कम्युनिज्म को जो फादर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्ट जो था आइडियोलॉजी था, ही गेव दिस कि दैट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लासेज एंड यूज्ड टू फंडामेंटल हिस्टोरिकल प्रोसेस चेंज, राइट। चलो 27 क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर द टू कंसल्टेटिव मशीनरी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस वर कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया? ये पूछ रहा है कि कब बनाया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमिटीज वर कंस्टिट्यूटेड व्हेन? बोथ आर इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क इन स्टेटमेंट ऑल्सो। ऑप्शन 41, 42, 47, 50। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 42। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, यू विल कम टू नो दैट ओके यू हैव रिमेंबर्ड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज पार्ट ऑफ आवर लेबर लॉज। जो फैक्ट्रीज में या जो कंपनीज में मैनेजमेंट होता है उसमें जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिलिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि उसमें वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड मैनेजमेंट के साइड के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है, क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंसल्टेटिव,
एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? डी, ऑल आर द फंक्शन ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, राइट। By which amendment the provision of workers' participation in management was incorporated in Indian Constitution? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इट इज फ्रॉम ओवरलैपिंग एरिया पॉलिटी एंड लेबर लॉज, इट इज आस्किंग दैट बाई विच अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में इंश्योर किया गया था। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, इट वॉज डन ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी, ठीक है, दैट यू शुड नो। एंड दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही जरूरी है, याद रखना चाहिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, 14, 42, 43। तो आई थिंक आपको रिमेंबर होगा कि 42वां संविधान जो था, 42वां संशोधन, उसके द्वारा बहुत सारे मेजर चेंजेस किए थे। सो दिस ऑल्सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, राइट। चलिए 25th क्वेश्चन दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ ILO इंक्लूड्स, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या इंक्लूड करता है? इसमें से जो ऑप्शन है, एन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, अ गवर्निंग बॉडी, एन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, एंड डी ऑल ऑफ द वेब। आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर होगा? जो स्ट्रक्चर है उसमें ILO में क्या होता है दोस्तों? ILO के बारे में ऑलरेडी बताया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, वी शुड स्टडी अबाउट द ILO, ठीक है। हमारे नोट्स में भी है, ई बुक है जो PDF है दोस्तों, उसमें भी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन ज्वाइन और you can purchase our ebook where you will get all these content, important acts, ठीक है। बोल्ड पॉइंट जो उनके हैं, जिस्ट है, will be just gist and main points, like you can purchase our ebook from the link given in the description box. Also, if you are interested to join this test series, if you find it useful, if you think that this is going to help in examination, please दोस्तों don't wait, just join it. Just join it. Just 100-200 rupees fee is nothing दोस्तों. Just to take advantage of this initiative. It is the series is prepared by aspirants who are having real experience of examinations of UPSC. They know where UPSC focuses, where UPSC can ask questions. So don't wait and don't get confused. It is the best content on labor laws, industrial relations, social security, accounting and computers as few parts, like। तो ये रहा दोस्तों हमारा अब तक का टेस्ट 3 का डिस्कशन दोस्तों। 25 क्वेश्चन में डिस्कस किए, ओके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट 2, ठीक है, जिससे ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप you are getting and you are enjoying this initiative because we have uploaded almost more than 35 videos related with these topics. तो I think ये aspirants को helpful होगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए दोस्तों अगर ये हेल्पफुल है, इट इज़ हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन, प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी विल बी ऑल्सो गेटिंग मोटिवेशन फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोज़, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट 2 ऑफ दिस टेस्ट डिस्कशन। थैंक यू, गुड नाइट।